Hello friends, welcome back, and in this video finally we are going to discuss about our Malaysia trip where we went last year in the month of July. So we went there for 7 nights and 8 days and we covered two cities in Malaysia. One was Kuala Lumpur and one was Langkawi. So in this video we are going to discuss everything in detail, right from the total expenses, about our hotel stay, about our travel expenses, about our day-to-day itinerary, which all are the tourist destinations that we visited, what all are our key recommendations for you to visit, and what all are our learnings basis our trip so that you don't make those mistakes and you have a much more enjoyable trip. So let us not waste a lot of time and let us straightly dive into the video. So, starting with the topic of currency, the currency over there is ringgit, and that time when we went there, the ringgit rate was around 18 rupees converted to 1 ringgit. So, we carried around 20,000 Indian rupees converted to ringgit, and I would suggest you carry credit card which is international transactions enabled, which will come handy in bus stops and metro self-service kiosks. So talking about the visa process for Indians in Malaysia, Malaysia is completely visa free for Indians till December 2026. So last year for us also it was completely visa free. So all you have to do is go to the Malaysia tourism website and you have to fill out a form which is called the Malaysia Digital Arrival Card form. So you have to fill in some basic details like your mobile number, email ID, your flight number, which hotel you're going to stay and how long is your trip planned for. So once you fill those details, your Malaysia Digital Arrival Card, which is MDA, that form will be ready and you need to take a printout of that form, and once you go to the Kuala Lumpur airport, you have to show it to the immigration officer, post which they will allow you the entry into the country. So the entire process is very simple and hassle free. You can have a look at how this application form looks like for your reference, and yeah, the entire process is pretty much smooth and hassle free. Talking about flight tickets and hotel expenses, entire round trip, if you are planning to go to only Kuala Lumpur, entire round trip of a single person will cost around 15,000 rupees. Yeah, and there we decided to stay in hotel Hilton Garden Inn, and the price was around 6,000 per night. We stayed there for around 4 nights, and in Langkawi we stayed for around 3 nights. And if you're planning to go to Langkawi, KL to Langkawi trip will cost you around 3,000 per person. And in Langkawi we stayed in Bayview Hotel, where per night cost was around 5,000 rupees. We stayed there for around 3 nights, so both the hotels had a very good breakfast spread and vegetarian options were also available. So talking about Kuala Lumpur, the entire city is covered by two major modes of transportation, which are the public transport. One is the monorail and one is the metro line. Okay, but to be very honest, what both of us felt was that the entire process of going to one station and going to the other station and understanding the entire thing, the entire network of the city was extremely complicated. So we did miss out on a few routes. एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक रूट में चढ़ गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें दूसरी ट्रेन कहाँ से पकड़नी है. तो what we did, we went out of the metro station and booked a cab instead. So it is a bit confusing, but if you're able to understand, good for you. But the cab option is also there if you can avail that. So Grab option is there. So Grab is a cab service just like Ola and Uber in India, where you can book cabs. But I would like to specifically recommend and praise this cab service because the cabs were very clean and efficient. The cab drivers would arrive on time. There was no surcharge and there was no extra payment which was demanded by the drivers. So the cab used to arrive on time and we used to reach our destination on specific spot on times. But however, this was slightly on the more expensive side. So if you're traveling long distances, then do expect to pay somewhere around 2,000 to 2,500 for a distance of 30-35 kilometers. So that is a normal over there. So for some locations we took the metro ride and for some locations we took cab as well. So I would also like to highlight the difference between Bangkok and Kuala Lumpur. I have visited Bangkok also, but however, I would feel that the public transport system of Bangkok is much better because cabs are also slightly on the cheaper side, and there are also tuk-tuks which are available. Concept of tuk-tuks and auto is also there, which option was not available in Kuala Lumpur. So yeah, public transport in Kuala Lumpur is slightly more expensive if you compare to India and Bangkok. And next, talking about Langkawi. In Langkawi, the public transport scene is not that much. So, but there is one more very beautiful thing that you can opt for in Langkawi. So, Langkawi has this self-drive car facilities over there. You can rent a car. The moment you land in the airport, there are a series of cab rental providers that will give you a car on rent. So, all you need is a passport. You can show them your valid Indian passport. So, they are going to give you the car. But the best part about taking this cab in rent is the fact that it is extremely cheap. Per day car rentals is close to around 700 to 800 rupees only for a normal hatchback car. And since Langkawi is a duty-free city, duty-free state, the fuel costs are also very less. If I compare it to India, in India, the 1 litre cost of petrol is 100 rupees, whereas in
Langkawi, 1 liter cost of petrol costed us only rupees 50. So yeah, the local commute there was extremely cheap, and we had a lot of fun. Drove close to 250 to 300 kilometers in a span of 3 days. So this is how sorted the commuting scene was in Langkawi. So overall, it was good. Kuala Lumpur, I would say, a little bit tedious and little bit more expensive, but Langkawi was a cakewalk. अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है. दिस इज प्री बुकिंग योर टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स वेल इन एडवांस सो दैट यू सेव 30 to 40% ऑफ योर कॉस्ट rather than going there and spending. So for this you have to download the Klook app. So मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप मलेशिया जाने से पहले ही Klook app के थ्रू अपने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स की बुकिंग्स करवा लीजिए सो दैट आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस एकदम ही हैसल फ्री हो. And this video is not sponsored by Klook app. तो अब हम लोग एक्चुअल ट्रिप के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे हमने कौन सी प्लेसेस विजिट की हैं और आपको कौन सी प्लेसेस विजिट करनी चाहिए जो हमें बहुत सुंदर लगी. तो चलिए अब हम कुआलालंपुर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं. कुआलालंपुर में हमने मेजरली देखा KL टावर, पेट्रोनस टावर. इसके बारे में तो आपको हर कोई बताएगा और ये काफ़ी पॉपुलर जगह भी है. एंड पेट्रोनस के सामने ही एक सूर्या मॉल है जिसके पीछे बैक साइड पे एक फाउंटेन शो होता है शाम को अराउंड 7 PM पे. तो वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर शो होता है और वहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन होता है. नेक्स्ट डे आप लोग प्लान कर सकते हैं पेविलियन मॉल, थियान हो टेम्पल दिन के टाइम पे, और रात को आप देख सकते हैं बुकिट बिनटैंग जो कि है एशिया का टाइम स्क्वायर. बहुत ही सुंदर लगेगा. एंड वहाँ पे काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें एंड फूड स्ट्रीट्स, पेटालिंग स्ट्रीट, लिटिल इंडिया जहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे, और सेंट्रल मार्केट जो कि बहुत ही अच्छा है शॉपिंग के लिए. अगर आपको कुछ लेकर जाना है एज अ सोवेनियर सो आप वहाँ पे सेंट्रल मार्केट में आप घूम सकते हैं. एंड सबसे एक्साइटिंग थिंग जेंटिंग हाईलैंड्स जो कि वहाँ से 30-40 किलोमीटर्स पे है. तो नेक्स्ट डे मैं बोलूँगी इसके लिए आप एक स्पेसिफिकली एक दिन अलग से रखें. जेंटिंग हाईलैंड्स एंड बाटू केव्स आप दिन में पहले जेंटिंग हाईलैंड्स जाने से पहले ऑन द वे बाटू केव्स आता है तो यू कैन विजिट बाटू केव. यू विल हैव टू स्टार्ट योर डे वेरी अर्ली दैट डे. 6 AM या 7 AM पे आप निकल जाइए बाटू केव्स के लिए. उसके बाद आप प्लान करिए जेंटिंग हाईलैंड्स पे जाने के लिए. एंड जेंटिंग हाईलैंड्स वुड बी द मोस्ट एक्साइटिंग टूरिस्ट स्पॉट ऑफ योर एंटायर कुआलालंपुर ट्रिप एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस. वहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क है जेंटिंग स्काई वर्ल्ड जहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स हैं और आउटडोर राइड्स भी हैं, इंडोर राइड्स भी हैं. एंड वहाँ पे एक बहुत अच्छा मॉल भी है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहाँ पे बहुत ही चीपर रेट्स पे अवेलेबल होती हैं. ओके, सो कुआलालंपुर के बाद हम गए थे लंकावी. जैसा कि आपको कीर्ति ने पहले भी बताया था कि 3,000 रुपये की फ्लाइट होती है पर पर्सन. सो वी टुक अ फ्लाइट ऑफ एयर एशिया फ्रॉम कुआलालंपुर टू लंकावी. एंड लंकावी अब एक बीच प्लेस है, ड्यूटी फ्री आइलैंड है जहाँ पे टैक्सेस बहुत कम है. तो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया कि हमने कार रेंट में ली थी एंड वी कवर द एंटायर सिटी. मोस्टली 250 to 300 किलोमीटर्स हम पूरे के पूरे गाड़ी में ही कवर कर रहे थे जिसको मैं सेल्फ ड्राइव कर रहा था. तो मेजरली तो ड्राइविंग मैंने ही किया, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए मैंने कीर्ति को भी कार ड्राइव करने का मौका दिया, एक्सपीरियंस करने का मौका दिया कि एक इंटरनेशनल कंट्री में कार चलाना कैसा होता है. आई होप तुमको मज़ा आया होगा कीर्ति. काफ़ी मज़ा आया. चलो बढ़िया. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लंकावी में क्या क्या डेस्टिनेशन है जो आप विजिट कर सकते हो. एक आपका है पंटाई चेनांग बीच जो कि एक फेमस नाइट टाइम बीच है. वहाँ पे आपको जाना चाहिए मोस्टली रात को. वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. आपका फायर शो होता है, रोबोट डांस होता है, म्यूज़िक बजता है, शैक्स है बीच जहाँ पे आप बियर पी सकते हो, विस्की पी सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो शैक्स में बैठ के आराम से. वहाँ पे रोमांटिक डिनर का भी सीन होता है. अगर आप एक रोमांटिक डेट पे जाके डिनर पे जाना चाहते हो यू कैन गो देयर. सी फूड काफ़ी अच्छा है, सी फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है. बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग करने का आपको वहाँ पे मौका है. एक और बीच है तंजुंग रू बीच बोल के, वो एक रिजॉर्ट का एक प्राइवेट बीच वाला एरिया है. अगर आपको जाना चाहे तो आप डे में वहाँ पे ड्राइव करके उस पर्टिकुलर बीच में भी आप जा सकते हो. काफ़ी सुंदर बीच है एंड द सनसेट्स फ्रॉम देयर आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. इसके साथ साथ 7 वेल्स बोल के एक वाटरफॉल है वहाँ पे जहाँ पे 7 कुएं हैं. इस पर्टिकुलर पॉइंट में जाने के लिए आपको मे बी 1.5 आवर्स की पहले एक ट्रैक करनी पड़ती है और उसके बाद आप जाके वहाँ पे वेल्स एंड एक स्प्रिंग्स होते हैं जहाँ पे जाके आप वहाँ पे वेल्स में आप नहा भी सकते हो. तो इट इज़ अ वेरी रेजुविनेटिंग एक्सपीरियंस. इफ यू वांट टू गो टेक अ बाथ इन दोस पर्टिकुलर वेल्स इट्स रेकमेंडेड टू कैरी सम टॉवल्स एंड कैरी सम एडिशनल क्लोथ्स आल्सो विद यू. नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा लंकावी के स्काई ब्रिज की. तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हम गए थे लंकावी में तो स्काई ब्रिज हम विजिट नहीं कर पाए. तो स्काई ब्रिज की खास बात ये है कि इट इज़ दी टॉलेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन दी वर्ल्ड. ठीक है, तो ये ब्रिज में आप जाओगे तो आपको माउंटेन क्लिफ का बहुत अच्छा और सुंदर व्यू मिलेगा. ये जो ब्रिज है ये एक स्ट्रक्चर से हैंग कर रहा है. ठीक है, इट इज़ ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन दिस वर्ल्ड. डेफिनेटली डू विजिट इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी. वहाँ पे केबल कार चलती है जिससे आप वहाँ पे जा सकते हो. सैडली हम लोग के टाइम पे वो मेंटेनेंस में था तो वी कुड नॉट विजिट दैट प्लेस, बट डेफिनेटली यू शुड विजिट दैट डेस्टिनेशन. एक और डेस्टिनेशन है जिसका नाम है ड्रीम फॉरेस्ट लंकावी. दिस इज़ अ वेरी गुड साउंड एंड लाइट शो जिसमें एक मिथिकल क्रीचर लंकावी का वहाँ पे आपको बताते हैं कि एक कपल होता है, एक रोमांटिक स्टोरी होती है, उसको नरेट करते हैं ब्यूटीफुल लाइट एंड साउंड शो के साथ.
आई वुड से कि इट इज़ ओके, आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अगर आप चाहे, आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है, यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट एज वेल। हाँ, उसके बाद लंकावी की बीचेस में आपको वाटर स्पोर्ट्स करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्क्यूबा डाइविंग की अपॉर्चुनिटी है, एंड आपको स्कीइंग, जेट स्कीइंग आप कर सकते हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली आपको मिस नहीं करना चाहिए, एंड वो है सनसेट क्रूज। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अट्रैक्शन। अगर आपको सनसेट क्रूज में जाना है तो आपको क्लूक ऐप में पहले आप प्री बुकिंग कर लीजिए, लगभग अराउंड 4 to 5,000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपकी बुकिंग हो जाएगी। एंड वहाँ पे आपको लिकर, फूड, लंच एंड डिनर आपका पूरा अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे लगभग अराउंड 3:30 to 4 के आसपास क्रूज में बैठते हो, लगभग 7:30, 8 के आसपास वो क्रूज वापस शोर में आती है। वो आपको पूरा वहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसका पूरा एक राउंड ट्रिप देती है, एंड बीच में वो जो क्रूज़ है वो रुकती भी है। उसके बाद आप वाटर स्पोर्ट्स ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो, कैनोइंग कर सकते हो, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती है जिसमें आप इंडल्ज कर सकते हो। डीजे होता है and loud music and beer and everything is there where you can totally unwind and relax, and आप वहाँ पे आप सनसेट भी देख सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स वर एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो डेफिनेटली ये वाला चीज़ जो है सनसेट क्रूज, ये आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे फोटोज़ में भी कोलाज दिखा रहा हूँ, आई एम श्योर आपको ये फोटोज़ बहुत मज़ेदार लग रही है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू लंकावी, डेफिनेटली डू चेक आउट दीज स्पॉट्स। इसके साथ साथ एक 3D आर्ट म्यूजियम भी है वहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स है जिसके सामने आप जाके फोटो खिंचा सकते हो, एंड इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर द किड्स ऑल्सो इफ दे आर प्लानिंग टू विजिट। सो येस गाइज, विद दिस वी विल discuss about the key learnings that we felt about this trip, which we thought we should share it with you. This will consist of certain mistakes that we did and certain precautions that you also should take before planning a trip to Kuala Lumpur, so that your journey is much more fruitful and much more enjoysome. Okay, it is much more smoother. Okay, so first thing that we encountered was petrol pump. So in petrol pump, so basically I'll talk about my Langkawi experience. So we went to Langkawi, we took a self drive car. Okay, so जैसा इंडिया में होता है, some particular person is there जो कि आपके कार में फ्यूल भरता है, लेकिन लंकावी में ऐसा नहीं है, मलेशिया में बेसिकली ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको खुद से ही जाके अपना पेमेंट करना होता है, यू हैव टू योरसेल्फ पुट द फ्यूल इनसाइड योर व्हीकल। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो ना, अगर कार के लिए फ्यूल भरने के लिए, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू यूज़ कैश फॉर पेइंग द फ्यूल, क्योंकि अगर आप अपने खुद के कार्ड को अगर आप वहाँ पे स्वाइप करते हो तो आपको सबसे पहले कुछ एक सर्टन अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो जाता है। जैसे मैंने स्वाइप किया तो 200 रिंगिट रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा हो गया पेट्रोल पंप पे। ठीक है, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 200 रिंगिट्स मेरे अकाउंट से कट गए, एंड या पूरा एंग्शियस वाला सिचुएशन हो गया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो अ बेटर थिंग टू डू वुड बी कि आप वहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल को बुला लीजिए, वहाँ पे कोई स्टाफ तो होते ही है पेट्रोल पंप पे, उनको बुला लीजिए एंड आप कैश में पे करके उनकी असिस्टेंस लीजिए पेट्रोल फिल कराने के लिए। क्योंकि अगर आप अपना खुद का कार्ड पे करते हो तो उनका एक पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट कट जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे एक टूरिस्ट और आप वहाँ लंबे टाइम तक रहने नहीं वाले हो, तो इसका कोई आपको जरूरत नहीं है। सो इस चीज़ के बारे में प्लीज बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल। सो नेक्स्ट लर्निंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज रिगार्डिंग द मेट्रो एक्सपीरियंस। सो जब हम कुआलालंपुर में, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, दैट द एंटायर नेटवर्क ऑफ मेट्रो रेल्स इन कुआलालंपुर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, और हमने कुछ पहले जाने से पहले कुछ रिसर्च एंड कुछ स्टडी करके नहीं गई कि सिटी का मैप कैसा है, कहाँ से कौन सी पॉइंट्स हमें कवर करनी है। वी जस्ट वेंट देयर एंड वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट। तो इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ जाने से पहले आप थोड़े कुछ वीडियोज़ देख लीजिए जो नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉगर्स है, एंड सिटी के ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करिए, ताकि आप जब वहाँ जाए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाने के लिए कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ स्टेशन, कोई स्पेसिफिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपको कौन सा मेट्रो स्टेशन आपको बुक करनी है, कहाँ पे आपको जाना है। तो ये सब रिसर्च हमें पहले किया नहीं था। अगर आप पहले से इन चीज़ों को प्लान करके रिसर्च करके अगर आप जाओ तो योर जर्नी कैन बी मच मोर हैसल फ्री। हाँ, तो जैसा कीर्ति ने पहले भी आपको बोला था कि अगर आप इस ट्रिप में जा रहे हो तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कैश पर डिपेंडेंट रहिए, अपने पास एक फॉरेन एक्सचेंज वाला क्रेडिट कार्ड लेके चलिए। क्योंकि मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ जो हमारे साथ हुआ था। हम जब लैंड किए कुआलालंपुर में, तो हम प्लान कर रहे थे कि हम बस से जाएंगे अपने होटल में टू सेव सब कॉस्ट, क्योंकि टैक्सी से जाते तो हमारा 4-5 हज़ार का खर्चा आता। तो इसलिए वी वर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ बस देयर, बट बस स्टेशन में पहुंचने के बाद हमें ये पता चला कि दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कैश एट ऑल। ठीक है, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास क्रेडिट कार्ड था, बट हमें यूज़ करना नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वहाँ पे यूज़ करते, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे लैंग्वेज का भी थोड़ा बहुत बैरियर है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि कोई और इंडिविजुअल अपना खुद का कार्ड वहाँ पे स्वाइप करके हम उनको कैश दे दे, बट ऐसा होने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। बट somehow we figure out one person and we were able to go there by bus. So I would recommend you to take a credit card and learn to make online payments in those locations wherever these opportunities are there. Basically metro stations में यानी जो बस स्टॉप्स है, यहाँ पे एक सेल्फ सर्विस कियोस्क होते हैं जहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड को खुद स्वाइप करके आप अपने प्रोसेस को और स्मूथ बना सकते हो जर्नी को। एक चीज़ और जो कि कीर्ति ने भी आपको पहले बताया हुआ है कि अपने ऐप फोन में क्लूक ऐप को इंस्टॉल कर लेना, अपनी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जो बुकिंग्स है वो क्लूक ऐप से पहले से ही बुक कर लेना, ताकि आपको बहुत ज़्यादा खर्चे ना लेने पड़े। बेसिकली क्लूक ऐप में जो भी लिस्टिंग्स होती है वो इंडियन क्राउड्स के लिए थोड़ी बहुत एडजस्टेड होती है। तो सपोज आपको एग्जांपल देता हूँ, जो क्रूज़ वाला जो ट्रिप था, जो क्रूज़ वाले ट्रिप में हमने बुकिंग नहीं थी क्लूक ऐप से, हमने पे किया लगभग अराउंड 10 to 11,000 रुपीज़, लेकिन क्लूक ऐप में वो 7,000-6,000 रुपीज़ में हमारा दोनों का वो हो जाता।
तो वी एंडेड अप पेइंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा मनी, बट या इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा अवेयर रहिए एंड इंस्टॉल द क्लू कैप बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और नेक्स्ट लर्निंग की बात करें तो हम लोग जेंटिंग आइलैंड जाने के टाइम पे हम लोग गए थे कैब के थ्रू, बट वहाँ पे लोग जाते हैं गंडोला के थ्रू, जो कि है केबल कार। गंडोला दो जगह पे स्टॉप करती है। एक होता है पहला पॉइंट जहाँ पे जो है चाइनीज़ टेम्पल, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट सिंस हम लोग कैब से जा रहे थे और हमारा थोड़ा सा हमने प्री बुकिंग नहीं किया था क्लू कैब के थ्रू, तो वी वर वेरी एंशियस कि हमारा बुकिंग हो पाएगा कि नहीं। सो वी वर इन अ हरी टू रीच जेंटिंग आइलैंड, द मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मिस द चाइनीज़ temple. But we have heard that Chinese temple is a very beautiful place. It's between clouds. It's fully covered with clouds and वहाँ पे काफ़ी ठंड होती है Genting Highlands में. So do carry some warm clothes with you. तो वहाँ आप ज़रूर visit करें. But unfortunately हम लोग नहीं कर पाए. बट उसके रिव्यूज़ काफ़ी सही है। सो कुआलालंपुर में जो जेंटिंग स्काई वर्ल्ड एक अम्यूजमेंट पार्क है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पे एक इंटरनल ऐप आपको मिल जाएगा। तो आप किसी से भी बात करके वो इंटरनल ऐप के बारे में पता कर लीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में। ये आपको हेल्प करेगा। जो अम्यूजमेंट पार्क के लिए क्यूज़ लगती हैं उसमें आपको जल्दी ईजी एक्सेस एंड आपको क्यूज़ में इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, एंड दैट वे यू विल कवर मेनी मोर राइड्स इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये वाला पार्ट उन लोगों के लिए जो लोग वेजिटेरियंस हैं। सो अमोल और मुझ में, मैं एक वेजिटेरियन हूँ एंड इसलिए मुझे थोड़े बहुत चैलेंजेस हुए। सो अमोल ने काफ़ी सपोर्ट किया। ही ऑल्सो स्विच टू वेजिटेरियन फूड एंड बट हम लोगों ने थोड़े चैलेंजेस फेस किए। हम लोग एक डिनर में तो हम लोग सिर्फ मैगी या फिर लेज लेकर खाए थे, एंड फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स हमें बाहर मार्केट में एकदम रॉ वेजिटेबल्स मिल रहे थे। एक नाजी लिमैक उनका फूड होता है जो बिल्कुल ही रॉ जो लेडी फिंगर्स एंड बीन्स को देकर हमें किडनी बीन्स डालकर वो दे दिया गया था। सो दैट वे इट वाज नॉट दैट ग्रेट एक्सपीरियंस, बट आप लोग पहले से प्लान कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। लिटिल इंडिया और ये सब प्लेसेस पे आपको कुआलालंपुर में काफ़ी इजीली इंडियन फूड अवेलेबल हो जाएगा, वेज फूड। बट लंकावी में अनफॉर्चुनेटली इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड प्लेस, एंड वहाँ के सॉसेस जो हैं वो भी अमोल वहाँ पे जो चिप्स एंड सॉसेस होते हैं बेसिकली उसमें भी आपका नॉन वेजिटेरियन का एक एलिमेंट होता है। दे कंटेन क्रस्टेशियंस एंड मॉलस। तो कीर्ति को पता नहीं था, उसने बड़े मज़े में वहाँ पे 7-Eleven में जाके चिप्स का पैकेट उठा लिया एंड चिप्स खोल के खाने लगी। लेकिन मैंने उसको फिर बताया कि इसमें नॉन वेजिटेरियन होता है, इसमें सी फूड है, तो उसका चिप्स खाना भी वहाँ पे बंद हो गया बेसिकली। हाँ, in that way अमोल was a savior for me and he really stopped me from eating। अच्छा ये वेजिटेरियन नहीं है एंड इस सॉस में सी फूड है, so that way he proved to be a savior। थैंक्स अमोल, वरना मैं तो नॉन वेजिटेरियन कन्वर्ट होके आती वापस। खा भी सकते हो, क्या दिक्कत है। एंड एक और चीज़, जब आप इंडिया वापस आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कोई कॉइन्स ना कैरी करें रिंगिट वाले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मनी एक्सचेंज प्रोवाइडर्स डोंट प्रोवाइड एक्सचेंज फॉर कॉइन बेस्ड करेंसीज। हेंस इट इज़ अ वेरी स्मार्ट डिसीजन टू स्पेंड ऑल द रिंगिट्स इन कॉइन्स, एंड यहाँ पे आप इंडिया में आकर कोई कॉइन्स ना कैरी करें। सो येस, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे आपके लिए, जिससे कि आप अगर आप कुआलालंपुर और लंकावी जाने का प्लान कर रहे हो, मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हो, तो इस वीडियो से आप काफ़ी हेल्प एंड इंसाइट्स जनरेट कर पाओ। तो कीर्ति ने काफ़ी मेहनत करके एक आइटनरी बनाई थी जिसमें उसने 7 to 8 डेज़ का पूरा डिटेल डे टू डे टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे वो सिर्फ ये कवर की थी। तो ये वीडियो के नीचे लिंक में मैं ये पर्टिकुलर आइटनरी को डाल दूंगा। आप डाउनलोड करके अपने खुद के प्लान के हिसाब से, खुद की टाइमिंग के हिसाब से आप वो लोकेशंस कवर कर सकते हो, एंड आई एम श्योर कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। So yes, with this we'll wrap up our video for Malaysia trip, and next किसी वीडियो में हम आपको नए फॉरेन ट्रिप के बारे में आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। So okay friends, that's all for today. Tata, bye bye. Hope you have a great trip if you're planning to go to Malaysia. See you in the next video.